Hello plus 2 class. I hope all of you are fine and in high spirits. अपना कैपेसिटर ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਲਾਸਟ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਐਂਡ ਪੋਲਰ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਮ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਕਲਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜਡ ਰੀਜਨ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਜਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਜਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਵਟ ਆਰ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਾਂ ਪੋਲਰ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਟ ਆਰ ਪੋਲਰ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਜਿਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, that is called polar molecules। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਜਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਜਨ, then that molecule will be called polar molecules ਜਾਂ polar dielectrics। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ H2O ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ। O ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ and then again hydrogen। H2O ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 105 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ H ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 105 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NH3 ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਨੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, HCl ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਡੂ ਨਾਟ ਕੋਇਨਸਾਈਡ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਜਨ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ। ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਵ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਈਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਔਰ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਾਈਪੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ HCl, H2O, NH3, CO2, ਐਲਕੋਹਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਇਸ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਗਾਤਾ ਆਪਾਂ, then what happens। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, this is without electric field। ਇਸ 'ਚ E ਕਿੰਨੀ ਆ, 0। E0 ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ the permanent dipoles of the molecules orient in random directions and hence the net dipole moment is 0। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਂਡਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ
चाहे ए लै लो चाहे ए लै लो, सारे रैंडम डायरैक्शन च पे हैं। जदों रैंडम डायरैक्शन च हुंदे आ तां इन्हां दा नैट डाइपोल मूवमेंट 0 हुंदा है। हुण आपां देखांगे इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, फिलहाल नहीं किता होया इस च। चलो हुण आपां इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किता, देखो चेंज होया ना, मैं दोबारा दिखानी हाँ। विदाउट इलैक्ट्रिक फील्ड, नाउ इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, डायरेक्शन इज चेंज्ड, ठीक है। इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डिवेलप हो जाता है। की हुंदा की है इस च, यह जिहड़ा डाइलैक्ट्रिक हुंदा जिस च पोलर मॉलीक्यूल्स हैगे आ, एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच एक नैट डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस कर लैंदा है, करदा है, बट यह पोलर मॉलीक्यूल्स एक डिफरेंट रीजन नाल प्रोड्यूस हुंदा है। अगे जाके आपां नॉन पोलर च पढ़ांगे, उस च डिफरेंट रीजन करके यह डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हुंदा है। क्योंकि आपां पहलां देखिआ जदों इस केस दे विच जदों आपां कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई किता, then different permanent dipoles of such a dielectrics are oriented randomly due to thermal agitation। thermal agitation दे करके ये सारे randomly ये सारे डिस्ट्रीब्यूट होए हुए हैं, ठीक है। so the dipole moment is 0, but when an external electric field is applied in this case, ठीक है, ई आपां अप्लाई करता, ई दी डायरेक्शन भी तुसी देख पा रहे हो। हरेक डाइपोल मूवमेंट जिहड़ा इस मॉलीक्यूल च हैगा, इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट्स की कोशिश करता है कि मैं फील्ड दे अलोंग अपने आप नूं डायरेक्शन च आ जाऊँ। तुसी देखिया भी है पहला जिहड़ा डायग्राम दिखाया सी उहदे नालों दूसरा डायग्राम डिफरेंट है। सारिਆਂ ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। जदों सम अप करांगे आपां सारे मॉलीक्यूल्स दा 1 2 3 4 5 6 सारिਆਂ दा आपां सम अप करांगे, की आपां नूं अपीयर होएगा कि इत्थे सम नैट डाइपोल मूवमेंट इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। इन्हां सारे मॉलीक्यूल्स दा नैट डाइपोल मूवमेंट आ गया इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपां कहांगे दिस डाइलैक्ट्रिक इज पॉलराइज्ड, यह पॉलराइज्ड हो गया, ठीक है। व्हेन इलैक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द डाइपोल्स ओरिएंट देमसेल्व्स इन अ रेगुलर फैशन एंड हैंस डाइपोल मूवमेंट इज इंड्यूस्ड। इस डाइपोल मूवमेंट नूं आपां EP कहांगे, ठीक है। कंप्लीट अलाइनमेंट इज़ नॉट पॉसीबल ड्यू टू थर्मल एजीटेशन। मतलब जे आपां कहांगे बिल्कुल सेम यह इक्को ही डायरैक्शन च हो गए, इस तरह नहीं होएगा, क्योंकि इन्हां विच आफ्टर ऑल थर्मल एजीटेशन भी हैगी है, ठीक है। हले भी थोड़ी जी थर्मल एजीटेशन हैगी है, इस करके आपां कंप्लीटली नहीं कहांगे कि अलाइनमेंट होगी, बट टू मैनी एक्सटेंट इन्हां दी अलाइनमेंट हो जाएगी। अच्छा, ये एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन किस ते डिपेंड करती है, मतलब आप पोलराइज कर रहे हैं कितना क पोलराइज होएगा, यही डिपेंड करती है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू म्यूचुअली अपोजिंग फैक्टर्स। केड़े केड़े दो फैक्टर हैं, अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल विद फील्ड एंड, ठीक है, डाइपोल जी एक्सटर्नल फील्ड है तो डायरैक्शन इन्हों अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट थर्मल एनर्जी टेंड्स टू डिस्टर्ब द अलाइनमेंट। जी थर्मल एनर्जी ऑलरेडी ये सीगी वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है कि मैं अलाइनमेंट ना करन देवां। ये नाल आपां नूं ये पता लगेगा कि डाइलैक्ट्रिक डिवेलप करता है नैट डाइपोल मूवमेंट इन एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। उस तो बाद है नॉन पोलर मॉलीक्यूल्स या नॉन पोलर डाइलैक्ट्रिक्स। डाइलैक्ट्रिक तां कह रही हैं क्योंकि आपां अगे जाके ये ना इंसुलेटिंग मैटीरियल्स बारे पढ़ना है। इंसुलेटिंग मैटीरियल जिहड़े ट्रांसमिट करते हैं इलैक्ट्रिक इफैक्ट्स नूं विदाउट एक्चुअल कंडक्टिंग इलैक्ट्रिसिटी, ठीक है। डाइलैक्ट्रिक्स हुंदे की हैं, इंसुलेटिंग मैटीरियल्स हुंदे हैं जिहड़े इलैक्ट्रिक इफैक्ट नूं ट्रांसमिट करते हैं, बट आप यह इलैक्ट्रिसिटी नूं कंडक्ट नहीं करते हैगे।
नाउ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, molecule in which the center of positive charges coincide with the center of negative charge is called non polar molecules। मतलब इन्हां दा पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ते नैगेटिव चार्ज का सेंटर आपस विच जुड़ रहे हुंदे आ, कोइनसाइड कर रहे हुंदे आ। इन्हां दी सिमेट्रिकल शेप हुंदी है, ठीक है। पोलर दी आपां कहा सी सिमेट्रिकल शेप नहीं हुंदी, बट दे हैव नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव सिमेट्रिक शेप। एग्जाम्पल नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, बेंजीन, C6H6, ठीक है। ये सारे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। एक वाटर की एग्जाम्पल दिनी है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, तुहानूं दस्सिया सीगा, बट जिहड़ा ट्रांसफार्मर ऑयल हुंदा है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुंदा है, ठीक है। इसे करके ट्रांसफार्मर ऑयल जिहड़ा है एज ए बैटर डाइलैक्ट्रिक आपां यूज़ करते हैं, ना कि वाटर नूं यूज़ करते हैं। उस तो बाद है इफैक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पहला डायग्राम है जदों आपां इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया हैगा, ठीक है। पहला डायग्राम तुसीं देख सकते हो विदाउट इलैक्ट्रिक फील्ड है, इत्थे E0 है, E0 है तो P भी 0 होएगा। In the absence of external electric field, the effective positive and negative centers coincide, hence dipole is not formed। जदों आपां एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड लगाया ही नहीं हैगा, E0 है, पॉजिटिव तो नैगेटिव सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं आपस, ठीक है, इस करके नॉन पोलर है ये, तो डाइपोल नहीं फॉर्म होएगा। सैकेंड डायग्राम च देखो, वैन नॉन पोलर डाइलैक्ट्रिक इज हैल्ड इन एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड, E0 की कोई वैल्यू देती आपां हुण, अगेन दोबारा देखो, ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड देता, देखो किवें डिस्टॉर्शन हुई, की होया, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स, दिस रेड वन इज प्रोटॉन, ठीक है। यह सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन ईच मॉलिक्यूल इज पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, मतलब टूवर्ड्स नैगेटिव प्लेट, ठीक है। अगेन तुसीं देख सकते हो, देखो E की डायरेक्शन ये रही, पॉजिटिव चार्ज यह जिहड़ा रेड है किवें अट्रैक्ट हो रहा है, दोबारा दिखा रही हूँ, केयरफुली देखो। नाउ इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट हो गया, मतलब टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट चला गया, एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलैक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो पॉजिटिव प्लेट वाल जाएगा। देन द टू सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन द मॉलिक्यूल्स आर सैपरेटेड, ठीक है, ये दोनों सैपरेट हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल डिस्टोर्ट हो गया। देखो इस केस च किस तरह सी शेप मॉलिक्यूल दी, इस केस च किस तरह सीगी, डिस्टोर्ट होया वे ना सेकेंड केस च, ठीक है। ये डिस्टोर्शन हो जाती है तो आपां कहांगे हुण जिहड़ा मॉलिक्यूल है ये पोलराइज्ड हो गया एज ए टाइनी डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। हरेक मॉलिक्यूल दे विच डाइपोल मूवमेंट आ गया। असल च की हुंदा है, असल च फोर्स ड्यू टू इलैक्ट्रिक फील्ड pulling the two centers apart, and second force of mutual attraction between the centers of positive and negative charges एक बैलेंस च पहुँच जाते हैं, इक्विलिब्रियम च पहुँच जाते हैं, एंड इसनों आपां इस केस च आपां कहने कि मॉलिक्यूल पॉलराइज्ड हो गया, ठीक है। एक तो इलैक्ट्रिक फील्ड करके फोर्स लग रही है, जिहड़ी फोर्स जिहड़ी सेंटर्स नूं अपार्ट दूर कर रही है। एक फोर्स इन्हां च आपस च हैगी है, म्यूचुअल अट्रैक्शन हैगी है, क्योंकि पॉजिटिव ते नैगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये दोनों फोर्स जो बैलेंस इक्विलिब्रियम च पहुँच जांदियां तो आपां कहने मॉलिक्यूल्स पॉलराइज्ड हो गया। दिस इज P, इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट व्हेन इलैक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड
The positive charges are pushed in the direction of electric field and the electrons are pulled in the direction opposite to the electric field. Due to separation of effective centers of positive and negative charges, dipole is formed. डाईइलैक्ट्रिक्स अगली टर्म है अपनी डाईइलैक्ट्रिक्स। जी आप जनरली गल करिए वट आर डाईइलैक्ट्रिक्स, नॉन कंडक्टिंग मीडियम और इंसूलेटर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ डाईइलैक्ट्रिक्स। ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ डाईइलैक्ट्रिक ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, इंसूलेटिंग मटीरियल्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ट्रांसमिट ਕਰਦੇ ਆ बट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलैक्ट्रिसिटी। जे प्रिसाइजली कहिए तो आप ये डेफिनेशन है, देखो प्रिसाइजली वट आर डाईइलैक्ट्रिक्स, द नॉन कंडक्टिंग मटीरियल्स इन विच इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड on their faces on the application of electric field are called dielectrics. Example: air, hydrogen, glass, mica, paraffin wax, transformer oil, etc. आगे है polarization of dielectrics। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ नॉन पोलर डाईइलैक्ट्रिक्स लैब है अपने को, इस ते आपां इलैक्ट्रिक फील्ड लगाने आ, डाईपोल्स इंड्यूस हो जाते हैं। किस करके हो जाते हैं? क्योंकि पॉजिटिव ते नैगेटिव सेंटर्स सैपरेट हो जाते हैं। दोबारा समझा रही हूँ मैं पोलराइजेशन ऑफ डाईइलैक्ट्रिक्स। जदों नॉन पोलर डाईइलैक्ट्रिक्स लैब अपने को ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ इलैक्ट्रिक फील्ड लगाने आ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਈਪੋਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟਰਸ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨॉन ਪੋਲਰ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। E ਜਦੋਂ 0 ਸੀਗਾ, ਨਾਓ ਆਪਾਂ E ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता, उसकी डायरेक्शन भी तुसी देख रहे हो, दिस वन, ठीक है। मतलब इधर पॉजिटिव है, इधर नैगेटिव है। दैन इस तरह कुछ ये डिस्टॉर्शन हो जाएगी, इन्हां दी सैपरेट हो जाएंगे प्लस ते माइनस चार्ज। तुसी देख रहे हो इन्हां मॉलीक्यूल्स किवें प्लस ते माइनस चार्ज जिहड़े हैगे आ सैपरेट होए हैं। दोबारा देखो यह केस सीगा जदों इलैक्ट्रिक फील्ड 0 सी, मतलब आपां कोई अप्लाई नहीं किया सीगा। दैन अप्लाई करन तो बाद देखो नाल दी नाल हो गया ना, सैपरेशन हो गई पॉजिटिव ते नैगेटिव सेंटर्स दी। इस प्रोसीजर नूं आपां कहने आ पोलराइजेशन ऑफ डाईइलैक्ट्रिक्स, ठीक है। ये जोड़ा इंड्यूस्ड होएगी इलैक्ट्रिक फील्ड EP जिन्हों कहने हैं, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होएगी अपनी अप्लाई की हुई डायरेक्शन तो। E0 की है अपना अप्लाई फील्ड है जोड़ा आप अप्लाई किया है। EP है इंड्यूस्ड फील्ड इन दी डाईइलैक्ट्रिक, यह डाईइलैक्ट्रिक दे विच ही इंड्यूस होएगा। EP जोड़ा है जिन्नी कि डाईइलैक्ट्रिक स्लैब है वो ही इंड्यूस होएगा। जी डॉटेड लाइन दिखाई हुई है, ठीक है। डॉटेड लाइन वाला जो बॉक्स दिखाया हुआ है इत्थे ही EP जोड़ा इंड्यूस होएगा। नैट फील्ड कितना होएगा इस डाईइलैक्ट्रिक च? E0 माइनस EP, दिस E0 माइनस EP, इनू आपां कहांगे EN, ठीक है। नैट इलैक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस। फील्ड नैचुरली रिड्यूस होएगा, ठीक है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ डाईइलैक्ट्रिक स्लैब इंड्यूस करांगे E0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ फील्ड रिड्यूस होएगा। डाईइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट की हुंदा K कहने आपां नूं, इसनूं डाईइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट, ये तुहानूं 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। K = अपलाइड फील्ड अपॉन रिड्यूस फील्ड, जिन्ना रिड्यूस होया, रिड्यूस कितना होया E0 माइनस EP, ठीक है।
ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ E0 ਮਾਈਨਸ EP ਨੂੰ EN ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੋਲਰਾइजेशन ਵੈਕਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਵਟ ਇਜ਼ डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन आ जाए, then you will write the ratio of external electric field applied E0 to the reduced value of the electric field En is constant for the material. This constant is denoted by K and is called dielectric constant of the material of the slab. Polarization vector बड़ी सिंपल जी टर्म है ये। द polarization vector measures the degree of polarization of the dielectric। मतलब ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ डाइलैक्ट्रिक ਨੂੰ किस डिग्री तक कितनी एक्सटेंट तक पोलराइज किया। It is defined as the dipole moment of the unit volume of the polarized dielectric। जे अपने को सपोज करो n नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं एक पर यूनिट वॉल्यूम, डाइलैक्ट्रिक की आप पर यूनिट वॉल्यूम ले ली, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ सपोज कर लिया n नंबर ऑफ एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, दैन पॉलराइजेशन वैक्टर की होएगा, दैट विल बी इक्वल टू n इंटू p। वैक्टर P इस दा SI यूनिट हुंदा कूलम पर मीटर स्क्वेयर। अगली टर्म है इंपॉर्टेंट डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आपां देखो डाइलैक्ट्रिक मीडियम नू इलैक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, ठीक है, मतलब आपां मैक्सिमम देने की कोशिश करांगे, बट उस लिमिट तक देवांगे जिस लिमिट तक ਉਹਦੀ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक डाउन ना हो जाए, क्योंकि डाइलैक्ट्रिक है कि बेसिकली तो इंसुलेटर है ना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड करके डाइलैक्ट्रिक मीडियम ਨੂੰ देई जा रहे हैं, ठीक है, बट ਉਹਦੀ डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ है कुछ, ठीक है। ਉਹ डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ की है, जब तक ਉਹ उन्ना मैक्सीमम इलैक्ट्रिक फील्ड टोलरेट करेगा जब तक कि उसकी आप इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक डाउन ना करिए, ठीक है। इट इज़ द मैक्सीमम वैल्यू ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलैक्ट्रिक विदाउट इट्स इलैक्ट्रिक ब्रेक डाउन। ये प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंस है इस डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ की टर्म की। देखो थोनू पता फार्मूला V इज इक्वल टू Q अपॉन C। V इज इक्वल टू Q अपॉन C। कैपेसिटर की करता है, चार्ज होल्ड करता है, कितना चार्ज होल्ड करता है Q, जदों आपां नूं स्मॉल पोटेंशियल दिन्ने आ V, ठीक है, दिस V पोटेंशियल। जदों इहदी कैपेसिटी लार्ज हुंदी है तां ही आपां स्मॉल पोटेंशियल दे के इसदा चार्ज इनक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, इहदे विच चार्ज होल्ड करन दी कैपेसिटी बना सकते हैं। जदों हाई पोटेंशियल डिफरेंस हुंदा है, मतलब V दी वैल्यू हाई हुंदी है, तां स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रिक फील्ड आ जांदा है, ठीक है। ओह स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ी सराउंडिंग एयर हुंदी है उहनूं आयनाइज कर दिंदा है एंड चार्जिज नूं एक्सलरेट कर दिंदा है। चार्जिज एक्सलरेट हो गए तो ओपोजिटली चार्ज प्लेट वल चार्जिज जिहड़े हैगे आ जान लग जाते हैं, ठीक है। इस करके इस न्यूट्रलाइज करना है पार्शली चार्ज ऑन दी कैपेसिटर प्लेट्स नूं, मतलब इहदा सारे दा मतलब की है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स वुड लीक अवे ड्यू टू रिडक्शन इन इंसुलेटिंग पावर ऑफ द इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है। मैं जिहड़ा V इज इक्वल टू Q अपॉन C दस्सिया ये इसे करके दस्सिया, मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स वुड लीक अवे ड्यू टू रिडक्शन इन इंसुलेटिंग पावर ऑफ द इंसुलेटिंग मीडियम।
जे आपां कैपेसिटर नूं लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कराना है, ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस ज़्यादा होनी चाहिए है। एंड जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अल्टीमेटली की है, हैंस इलैक्ट्रिक फील्ड ब्रेक डाउन लिमिट तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, जदों आपां कैपेसिटर नूं ज़्यादा अमाउंट स्टोर कराना है, ਇਹਦੀ कैपेसिटेंस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए है। मतलब ਇਹਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा आपां अप्लाई करना है वो कितना होना चाहिए है, इन्ना कुछ होना चाहिए है कि ਇਹਦੀ लिमिट्स नूं ब्रेक डाउन ना करे, ठीक है। हाँ जी, इसका SI यूनिट है वोल्ट पर मीटर। प्रैक्टिकल यूनिट नोट कर लो। उस तो बाद टेबल है मेन, थोड़ी जी डाईइलैक्ट्रिक्स है और डाईइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी हुई है। जिस तरह एयर की 0.8 होंगी है डाईइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इस टेबल चो तुसी रफली निगाह मार सकते हो। उस तो बाद अपना आर्टिकल है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाईइलैक्ट्रिक स्लैब। जदों आप देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तुसी पढ़िया होया, पिछली वीडियो च तुहानूं यह आर्टिकल कराया होया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जदों हुण आपां इहदे विच डाईइलैक्ट्रिक स्लैब रखती, दैन वट हैपन्स, उस दी कैपेसिटेंस नूं की फर्क पैंदा है, ठीक है। चलो आपां पहलां डायग्राम देखते हैं। अपने कोल यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट ते प्लस चार्ज है, एक प्लेट ते माइनस चार्ज है, ठीक है। इन्हां प्लेट्स का एरिया हैगा A ते इन्हां दे विच सैपरेशन हैगी है, दिस सैपरेशन दिस इज़ D। मैं दोबारा भी तुहानूं शो करांगी। ये इलैक्ट्रिक फील्ड हो रहा है विच, ठीक है, दैट इज़ E0। हुण आपां की कीता, इहदे विच एक डाईइलैक्ट्रिक स्लैब रखती, ठीक है। विदाउट डाईइलैक्ट्रिक स्लैब इन्हां विच प्लस माइनस क्यू चार्ज सीगा, ठीक है, यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा सीगा। हुण आपां एक डाईइलैक्ट्रिक स्लैब रखती जिसकी थिकनेस है T। इन्नी थिकनेस की डाईइलैक्ट्रिक आपां स्लैब इहदे विच इंड्यूस करती। इन्हां दे जिहड़े मॉलीक्यूल्स होणगे स्लैब दे विच, ये पोलराइज्ड हो जाणगे। किस डायरैक्शन च पोलराइज्ड होणगे? E0, ए वाली डायरैक्शन च, ठीक है। जिहड़ी E0 की डायरैक्शन है उस डायरैक्शन दे विच ये पोलराइज्ड हो जाणगे। द इलैक्ट्रिक पोलराइजेशन वैक्टर P in the direction of E0 induces an electric field E P। देखो दिस इज D थिकनेस। हुण आपां देख रहे हैं EP इंड्यूस हो रहा है। EP इंड्यूस किहदे डायरैक्शन हो रहा है? इस E0 की डायरैक्शन तो ऑपोजिट। दोनों की डायरैक्शन देखो ऑपोजिट है, ठीक है। मैं रिपीट कर दिंदी हाँ। जदों आपां स्लैब इंड्यूस करती प्लेट्स के विचकार, मॉलीक्यूल ऑफ स्लैब गेट पोलराइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ E0। द इलैक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर P in the direction of E0 induces an electric field EP opposite to E0। then effective field inside the dielectric की होएगा, ठीक है। इफेक्टिव फील्ड होएगा EN होएगा E0 माइनस EP। अच्छा, जिथे तक कि डाईइलैक्ट्रिक स्लैब नहीं हैगी, ठीक है, जिथे तक डाईइलैक्ट्रिक स्लैब नहीं हैगी उत्थे E0 सेम रहेगा, मतलब इस एरिए च, ठीक है, सेम रहेगा, क्योंकि इत्थे आपां स्लैब नहीं रखी हुई नहीं हैगी। चलो तुहानूं डायग्राम समझ आ गया। हुण आ जाओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू प्लेट्स। अपने कोल दो प्लेट्स हैं, एक्चुअली उन्हां विच पोटेंशियल डिफरेंस है, वो तुहानूं पता है, पिछे पढ़ के आए हो तुसी।
ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई एन इंटू टी। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ई नॉट पता अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड है, डी पता है थिकनेस है ਇਹਦੀ पैरलल प्लेट ਦੀ डिस्टेंस है, डी पैरलल प्लेट ਦੀ आपस डिस्टेंस है, टी थिकनेस है स्लैब ਦੀ, ई एन जिन्ना इलैक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होया है, ठीक है, जिन्ना अपने को इफैक्टिवली हुण आ रहा कि हुण इस इलैक्ट्रिक डाईइलैक्ट्रिक स्लैब च एन इलैक्ट्रिक फील्ड है अपने को, ठीक है। टी अगेन स्लैब की थिकनेस है, ठीक है। ये फार्मूला क्लीयर हो गया थोनों। V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई एन इंटू टी। हाँ जी, उस तो बाद डाईइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ थोनों पिछली स्लाइड से पढ़ा के आया, K इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई एन, ये तुसी फार्मूला लिखता, या ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ई एन की वैल्यू कढ़ ਲੈਂਦੇ ਆ, ई नॉट अपॉन के। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ई एन है ना, आ वाला ई एन ਇਹਦੀ जगह ਆਪਾਂ ਇਹ पुट करांगे, इस करके ਇਹ ਲਈ है वैल्यू। सो ये इक्वेशन किवें बन गई, V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के, ठीक है। ई एन की जगह ਆਪਾਂ ਇਹ वाली वैल्यू पुट करती इंटू टी। उस तो बाद की किया आपां ई नॉट कॉमन कट लिया, दैन आपां नूं पता है ई नॉट हुंदा सिग्मा अपॉन एप्सलन, एप्सलन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सलन नॉट, ई नॉट की वैल्यू हुंदी है। सिग्मा की है सरफेस चार्ज डेंसिटी, हुण इस च आपां पैरल प्लेट लै रहे हैं, सरफेस मतलब आपां ए लवांगे क्यू इंटू ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इंटू ए अपॉन एप्सलन नॉट, ठीक है। एंड सी कैपेसिटेंस की हुंदी है क्यू अपॉन वी, ठीक है। हुण आपां ये सारियां इक्वेशनस सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी दे विच यह इक्वेशनस वी की वैल्यू ये वाली भरांगे, ठीक है। देखो की आंदा रिजल्ट अपने को, दिस इज़ द रिजल्ट। तुसीं यह कॉपीज़ ते करके देखना आराम नाल स्टैप बाय स्टैप, तुहानूं बड़े क्लीयरली समझ आ जाएगा। ये आपां वैल्यूज़ ही पुट कीतियां ने, ठीक है। दिस रिजल्ट कम्स आउट, या आपां इहनूं लिख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपां मैथेमैटिकली इहनूं चेंज किया, तुसीं ये कॉपीज़ ते करोगे, अपने हथ नाल करोगे तो थोड़ा बड़ी ईजली समझ आ जाएगा। अपने को आ गया सी इज इक्वल टू ए एप्सलन नॉट अपॉन डी ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन डी स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन के स्मॉल ब्रैकेट क्लोज दैन बिग ब्रैकेट क्लोज। हुण इस आपां की देख रहे हैं, ठीक है। सी नॉट जिहड़ी हैगी है सी नालों छोटी है, मतलब जदों आपां डाईइलैक्ट्रिक स्लैब पाती इन बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस इनक्रीजिज। देखो सी दी वैल्यू ज़्यादा होएगी नेचुरली, ठीक है। सी दी वैल्यू सी नॉट नालों ज़्यादा होएगी, मतलब पैरल प्लेट दे विच आपां जदों डाईइलैक्ट्रिक स्लैब इंड्यूस करते हैं पाने हैं, दैन सी दी वैल्यू इनक्रीज हुंदी है। उस तो बाद आपां एक पर्टिकुलर केस देखांगे, इफ द डाईइलैक्ट्रिक स्लैब ऑक्यूपाइज द होल स्पेस बिटवीन दी प्लेट्स, मतलब आपां टी जिहड़ी हैगी है डाईइलैक्ट्रिक कांस्टेंट, इस तो आपां कढ लिया कि डाईइलैक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट, मतलब डाईइलैक्ट्रिक कांस्टेंट के दो रेशो हो जाता है सी अपॉन सी नोट दे। हुण इस तो बाद आपां देखना है विद डाईइलैक्ट्रिक स्लैब की इफैक्ट पैंदा है। देखो इस टेबल तो तुसीं देख सकते हो डाईइलैक्ट्रिक स्लैब आपां इंट्रोड्यूस की है, चार्ज ते की इफैक्ट पैंदा है, कैपेसिटेंस ते, इलैक्ट्रिक फील्ड ते, पोटैंशियल डिफरेंस ते, एनर्जी स्टोर ते की इफैक्ट पैंदा है जदों बैटरी डिसकनैक्ट है या बैटरी कनैक्टिड है।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਪੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।